माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 121 श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी। प्रश्नकाल के बाद विचार करेंगे। प्रश्नकाल के बाद विचार करेंगे। बालू साहब, आपसे जो मैं ऐसा नहीं हूं जो सदन में कमिटमेंट करता हूं, अंदर वो बाहर भी कमिटमेंट करता हूं। मैं ऐसा कमिटमेंट बदलता नहीं हूं। आपसे अंदर जो कमिटमेंट किया बाहर भी वही। कुछ लोग अंदर कमिटमेंट क्या करते हैं, बाहर वो करते हैं। प्रश्न संख्या 121। नो प्लीज। क्वेश्चन 1 to 1। नो। मंत्री जी, जन्मदिन की आज संसदीय कार्य मंत्री जी का जन्मदिन है, बधाई दे दो सब। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आंसर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। मीनाक्षी जी, माननीय सदस्य जी। अध्यक्ष जी, जब डिबेट हो रही थी पोल्यूशन और प्रदूषण को लेकर, तो कुछ लोगों ने कोयले की भी बात की, थर्मल प्लांट्स की भी बात की। तो बीजिंग का उदाहरण दिया जो मेरे हिसाब से गलत उदाहरण था, लेकिन उसमें ये कहा गया कि जो कोयला जो कार्बन है जो हवा के अंदर मौजूद है उसको कैप्चर करके डायमंड बनाया जाता है। तो मैंने उस समय भी बात कही थी और अभी उस बात को दोहरा रही हूँ कि अगर कार्बन को ही कैप्चर करना है तो जो हमारे थर्मल प्लांट्स हैं उसमें से क्या हम कार्बन को कैप्चर कर डायमंड और इंक और अन्य प्रोडक्ट्स के लिए काम कर सकते हैं, ताकि एफ्लुएंट्स कम हो, और एफ्लुएंट्स कम होंगे तो प्रदूषण खुद से कम होगा। और जैसे जैसे भारत की एनर्जी नीड्स बढ़ेंगी और हम लोग जितने ज़्यादा इकोनॉमिकली साउंड होंगे उतनी हमें एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा चाहिए। रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए कोयले पे हमें निर्भर होना ही पड़ेगा और इसीलिए प्रोडक्शन को भी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हमारी इंपोर्ट के ऊपर जो पैसा खर्च होता है वो खर्च ना हो। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या टेक्नोलॉजीज को हम परिवर्तित कर बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश कई राज्य हैं जिनको कोयला चाहिए। सब संक्षिप्त में करें ताकि मेरी सूची को 20 तक मुझे ले जाना है, अगर आप सहमत हैं तो। Sir, the need of the hour is energy security. So for that reason, we have already imported the coal, more than nearly about 235 million tons of the coal. Of course, within that coking coal is also there and non-substituted coal is also there. Having said that, as far as pollution is concerned, our coal companies, including CIL and all our subsidiaries, taking lot of care, plantation and other things. But as far as this particular question is concerned, it is to the power sector, but I appreciate honorable members concerned about the pollution and we will consult with the power ministry. माननीय सदस्य। Honorable sir, it's about the collieries also. We are using some old technologies. For example, process of sedimentation to clean up coal and using collieries. So my point is, I think India's requirement and energy security requires that we use coal. We increase the production of coal. We do forestation in those areas, but simultaneously using better technologies and localized technologies from Indian institutes, etc., is what is needed in managing collieries as well. As far as managing collieries is concerned, the upgraded technology, the worldwide whatever we are having, all our companies, PSUs, we are trying to adopt it and we are monitoring it. And even in the answer we have mentioned it, that how we are trying to increase the technology, productivity with the upgraded technology. But at the same time, we produce the coal, but remaining things, we are producing the coal and supplying to the various sectors, including power sector and other sector, regulated and non-regulated sector. There, they have to think of the technology where pollution is reduced. It is basically to reduce the pollution.
Power Ministry and the users, people who are using the technology, manufacturers who are the technology, coal, they have to think on that. And surface miner use, blast-free, surface miner, all such technologies are being used now. श्रीमती कनिमोझी जी। What is the extent of losses suffered by India's exchequer due to the decline in coal output in the past 3 years? And I'd also like to know the states which have faced a decline and what losses the Tamil Nadu government is facing. As far as the total coal import is concerned, 235 million ton coal import we have done last year. And by that, nearly about 1,71,000 crores, the foreign exchange we have lost on that. And government is very serious about the increase in the production of the coal. As far as what Tamil Nadu government has faced the loss, incurred the loss because of the import, that I will ascertain and come back to you. श्री के रघु राम कृष्ण राजू। Honorable Speaker, sir, I would like to, while I appreciate the initiative in increasing the production by 165 million tons, which is really commendable, a lot of mines were given to the private companies, and how is their performance in mining, and if they are not up to the mark as expectations, what were all the steps that can be initiated to improve the production? I would like to put this question to the Honorable Minister through you, sir. That's After 2015, after amendment of the MMDR Act, this auction cum allocation to the PSUs, it has started. Before to that, it was purely on the allocation basis. And now, before recent cabinet decision, and now also before FDI, 100% FDI decision, these coal blocks were given to the captive mines. And captive mines, captive users, whatever they are using, whatever is being, production is done by them, it is approximately around 32 million ton they have done last year. And 5 years is not a very big period, because you know, to avail all the clearances from the beginning, 6 to 7 years it will take, and we are trying to reduce it. Even we are trying to reduce, avoid the prior approval system which is now existing, which consumes more than 1 year. That also we are, by an amendment, we are trying to totally scrap that. So once if coal block is allocated to either to the government company or to the private company, they need not come back. Mining license and other can be given there itself in the state government, and fast appropriation and fast clearance of ECFC, and new policy initiatives of 25% in captive mines for the sale of coal. Whatever now the auctions are going on, around 46 blocks we have put on auction. Out of that we have allowed 25% after the requirement in the captive production. After completion of their requirement, they can sell 25% of the coal in the open market. Sri Vicent H. Pala. Thank you, sir. Sir, in the answer given by the Minister that the government is accelerating the production of the private mines. In Meghalaya recently, the National Green Tribunal has seized 32 lakh tons of coal, and the Coal India Limited has been mandated to auction the coal. May I know from the Honourable Minister whether the auction of the coal will be as per the paper available, because there's a perception that there's no coal outside, or will the auction be taken as per the practical physical availability of coal outside, or as per the paper which is available in the Supreme Court? Thank you, sir.
So coal auction, we want to, coal auction, coal block auction, whatever is there, Government of India thinking and approach is very clear that it should be very transparent system and equal opportunity to be provided to everybody. क्वेश्चन नंबर 122 श्री हरीश द्विवेदी जी। प्रश्न संख्या 122 सभा पर डबल रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न था उसका लिखित उत्तर विस्तार से मुझे मिला है। मुझे एक जानकारी चाहिए माननीय मंत्री जी से। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, स्वतंत्रता आंदोलन, देवरिया, कुशीनगर, सभी पूर्वांचल के सभी जिलों में स्वतंत्रता आंदोलन के समय में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। हमारे जिले में राजा जालिम सिंह, राजा उदय सिंह, सर प्रश्न उसी जुड़ा हुआ प्रश्न है सर। हमारे जिले में राजा जालिम सिंह, राजा उदय सिंह, रानी तलाश कुंवर के नेतृत्व में हजारों नौजवान स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए, फांसी पर लटकाए गए। हमारे जिले के और पूर्वांचल के तमाम लड़के सेना में जाना चाहते हैं। पहले हमारे जिले में 1974 तक भर्ती कैंप लगता था, लेकिन पिछले 1974 के बाद भर्ती कैंप बंद हो गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या पुनः बस्ती में भर्ती कैंप वहां के नौजवानों की रुचि को देखते हुए लगाया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, भर्ती कैंप जो है वो हर साल में लगते हैं और हर साल उसी राज्य को मौका मिलता है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि जो हमारे रिक्रूटमेंट सेंटर है वहाँ अभी आप आज से भी अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन पे अप्लाई कर सकते हो। और जब उस डिस्ट्रिक्ट का मौका मिलता है कि हमारे जो 59 रिक्रूटमेंट सेंटर है पूरे देश में, उसमें सभी डिस्ट्रिक्ट और सभी स्टेट कवर किया हुआ है। मैं माननीय सदस्य को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आज से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। जब उस डिस्ट्रिक्ट का जब डेट आएगा तभी उसको सम्मिलित किया जाएगा। धन्यवाद, हो गया। क्वेश्चन नंबर 123, आपको सवाल पूछना है सप्लीमेंट्री? हाँ हरीश जी। नहीं सर, मेरा प्रश्न ये था कि क्या बस्ती में 1974 के पहले भर्ती कैंप लगता था? क्या सरकार की योजना आगे आने वाले समय में बस्ती में भर्ती कैंप लगाने की है कि नहीं? सभापति जी, मैं सदन को सब आप जवाब दें साहब। सभापति जी, मैं सदन को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स हमारे देश में 59 हैं और रिक्रूटमेंट सेंटर्स ये 73 हैं। बहुत बुलंद है आवाज। बुलंद है। और रिक्रूटमेंट सेंटर्स जो है हमारे यहाँ वो 73 हैं और उसके अतिरिक्त भी इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट सेंटर्स भी हैं और गोरखास के लिए भी 2 इस प्रकार के सेंटर्स हैं। इन सब सारे सेंटर्स पर रिक्रूटमेंट होता है और मैं सदन को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि हर रिक्रूटमेंट सेंटर से कुछ जिले जो है लिंक्ड हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रतिवर्ष इस प्रकार का रिक्रूटमेंट फोर्स आर्मी के द्वारा किया जाता है और हर जिलों से इसमें जो है सेना के जवान भर्ती होते हैं। श्री मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 1857 की जब आज़ादी का जंग हुआ उसके बाद अंग्रेजों ने भारत की फौज में जो रिक्रूटमेंट, आप तो प्रश्न पूछो, आजादी की लड़ाई क्यों पूछ रहे हो? अध्यक्ष जी, थोड़ा सा पृष्ठभूमि जरूरी है, इसलिए समय ले रहा हूं। प्रश्न में कभी भी भूमिका बांधना बंद कर दो। अच्छा, मैं संक्षेप में अपनी बात कह देता हूं। अध्यक्ष जी, जो रिक्रूटमेंट भारत की फौज में होनी शुरू हुई उसका आधार मार्शल रेस थ्योरी था और उससे भारत के जो स्थल सेना के रेजिमेंट हैं, राजपूत, डोगरा, सिख, इन सब का निर्माण हुआ। 1966 के बाद भारत सरकार ने रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन की जो नीति है उसको लागू किया। अध्यक्ष जी, मैं रक्षा मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि इस नीति के बावजूद भारत के कुछ ऐसे सूबे हैं जहां पे स्थल सेना, वायु सेना और आपके जल सेना में जाने का लोगों का विशेष लगाव रहता है और इस रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन की थ्योरी के बावजूद
उन प्रदेशों से अभी भी हमारी फौज में ज्यादा रिक्रूटमेंट होती है। तो मेरा सवाल मंत्री जी ये है कि ऐसे जो प्रदेश है, जैसे पंजाब है, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, इसको कुछ आप विशेष डिस्पेंसेशन रिक्रूटमेंट में देने के ऊपर विचार करेंगे कि नहीं? स्पेशल डिस्पेंसन का कोई प्रोविजन हमारे यहाँ नहीं है। जो रिक्रूटमेंट होता है वो पूरी तरह से इम्पार्शियल होता है, और जैसा मैंने पहले बतलाया कि सेंटर्स हमारे निर्धारित हैं, उन सेंटर से कुछ जिले जो लिंक्ड हैं, प्रतिवर्ष ये रिक्रूटमेंट का यह सिलसिला चलता रहता है। तो जो भी अप्लाई करना चाहे ऑनलाइन भी उसमें अप्लाई कर सकता है, और जब उसकी फिजिकल टेस्ट और उसके बाद मेडिकल टेस्ट जो भी होते हैं, इन सब सारे प्रोसेस में वो भाग ले सकता है। तो किसी को स्पेशल डिस्पेंसन देने का कोई प्रोविजन हमारे इस रिक्रूटमेंट के मामले में नहीं है। श्रीमती संगीता सिंहदेव। सर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि पिछले 10 वर्षों में कितने लोग, महिलाएं और पुरुष हैव बीन रिक्रूटेड बाय द आर्मी फ्रॉम द स्टेट ऑफ उड़ीसा? जिसे रिप्लाई आया था सर, उसमें सिर्फ पुरुषों के बारे में बताया गया ये था। सवाल लिए मैडम, आप पूछो पूरे देश में कितनी भर्ती हुई, कैसे संभव होगा? क्वेश्चन तो आप देखें जो लाइन पे भर्ती का क्वेश्चन है, गिनती तो कैसे बता पाएंगे? माननीय रक्षा मंत्री जी बता। अध्यक्ष महोदय, मैं नई इस सदन की सदस्य हैं, इसलिए उनकी जानकारी मुझे देना चाहिए। मैं उनको बताना चाहता हूं। अच्छा, दूसरा टर्म है, दूसरा फिर भी आपको बतलाना चाहिए मुझे। मैं वैसे जानकारी हर स्टेट में रिक्रूटमेंट पिछले 3 वर्षों में कितने हुए हैं उसकी मैं पूरी जानकारी दे सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें लंबा समय लगेगा। इसलिए यदि आपकी इजाजत हो तो मैं इनके पास इसकी मैं जानकारी भेज देता हूं। और वैसे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अप्रॉक्सीमेटली प्रतिवर्ष 60,000 के आसपास का रिक्रूटमेंट होता है, कभी 58, कभी 55,000, इसी प्रकार से रिक्रूटमेंट होता रहता है। बी मेहताब जी। Honorable Speaker, sir, I will ask my questions in 2 lines. Height is one of the major criteria for recruitment into the army. And as it has been repeatedly stated, that certain states where height is bit higher, and in certain states it is quite average. Odisha is tagged with Andhra, Telangana, whereas large number of tribal population, tribal youths have a shorter stature, and approach has been made to the Defence Ministry that we should be attached with Jharkhand and Chhattisgarh, because large number of tribal youths needs to be recruited into the army so that they move away from other type of violence that is occurring in tribal districts. Whether the government is considering reallocating the height criteria of Odisha in that manner. सभापति महोदय, उड़ीसा के संबंध में जहां तक जानकारी देने का प्रश्न है वो मैं जानकारी हासिल करने के बाद इनको बतला दूंगा, लेकिन जहां तक हाइट में अथवा चेस्ट के मामले में रिलैक्सेशन देने का प्रश्न है, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे ट्राइबल एरिया हैं जहां पर कि अथवा हिल एरियाज हैं वहां पर रिलैक्सेशन देने की आवश्यकता होती है, तो इन एरियाज में वह रिलैक्सेशन दिया जा सकता है और उसकी जानकारी भी हमारे पास है, लेकिन वो डिटेल है इसलिए उसमें जाने का इस समय कोई औचित्य नहीं है। मैं समझता हूँ वेबसाइट पर जाएंगे तो पूरी जानकारी मिल जाएगी किस एरिया के लिए और किस ट्राइबल जोन के लिए किस प्रकार का और कितना रिलैक्सेशन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 श्री कृपाल तुमाने जी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। कृपाल तुमाने जी वह सदस्य हैं जो रोज बोलते हैं। धन्यवाद महोदय, विवरण सभा पटल पे रखा गया। माननीय सदस्य। धन्यवाद स्पीकर महोदय। महाराष्ट्र राज्य एक प्रगतिशील राज्य करके पूरे देश में जाना जाता है। मुझे मिली जानकारी के अनुसार एक दूसरे राज्य में नाम भी ला तो मुझे फर्क नहीं पड़ा। बिहार में 1041 ग्राम पंचायत अभी ऑप्टिकल फाइबर से
जुड़ना बाकी है, लेकिन महाराष्ट्र की 10,201 ग्राम पंचायत अभी इस ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट होनी बाकी है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया में और स्पेसिफिकली इन रामटेक लोकसभा में ऐसी अभी कितनी ग्राम पंचायत बाकी है जो ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट होंगी? अध्यक्ष महोदय, हमारे सरकार का, क्योंकि जो सवाल पूछा गया था वो ग्रामीण क्षेत्र की इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के बारे में था, तो हमारी सरकार इसके लिए जो हमारा बहुत ही एम्बिशियस प्लान है डिजिटल इंडिया का और भारत नेट का, तो 2.5 लाख ग्राम पंचायत हम 2 फेज में इसके कनेक्टिविटी के लिए काम कर रहे हैं। इसमें पहले फेज में करीब 1,27,000 ग्राम पंचायत जो है वो जुड़ चुकी है। और इन्होंने जो सवाल पूछा तो मेरे पास इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी की तो डिटेल नहीं, लेकिन मैं महाराष्ट्र की जानकारी दे सकता हूं। महाराष्ट्र में पहले फेज में 95% से ज़्यादा टारगेट हमने अचीव किया और दूसरा फेज जो है वो जो स्टेट लेड मॉडल जो है, स्टेट वहाँ पे काम करने वाली है, तो वो भी काम प्रगति में है। माननीय सदस्य। धन्यवाद मंत्री महोदय, आप भी विदर्भ से आते हो इसलिए आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा ऐसी उम्मीद है। मेरा दूसरा सवाल है कि GSAT-11 सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद जो हमारे यहाँ के रूरल एरियाज है, जो दुर्गम एरिया है, इससे कनेक्टिविटी में हमें क्या लाभ ज़्यादा हो सकेगा, ये मेरा सवाल है। अध्यक्ष महोदय, आपकी अगर अनुमति होंगी तो इनके क्षेत्र का आंकड़ा मुझे अभी उपलब्ध हुआ, तो आप अगर नहीं, आप बैठ कर ही बता देना, ठीक है? ठीक है, इनका जवाब दे दो जो पूछ। दूसरा, उन्होंने जो अभी जो सवाल पूछा, तो हमारा जो सेकंड फेज है उसमें हम सैटेलाइट रेडियो जो दुर्गम दराज के इलाके हैं वहाँ पे इस माध्यम द्वारा हम कनेक्टिविटी उपलब्ध करा रहे हैं। श्रीमती नुसरत जान रुई। सर, हाँ बोलें आप। मुझे जानना था कि whether it is a fact that the government is planning to cover 800 gram panchayat under the BharatNet project in West Bengal. If so, then how many gram panchayat will be selected in 24 Pargana of West Bengal, especially in Basirhat, which is a very lagging behind area and one of the most backward area in the state? How can they help? Thank you. अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि दोनों फेज मिला के हम 2.5 लाख ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं। जो सवाल मुझे पूछा गया उसकी जानकारी तो अभी मेरे पास नहीं, मैं माननीय सदस्य महोदय से उसके बारे में अवगत करा दूंगा। श्री राजीव प्रताप रूडी जी। धन्यवाद सर। ये योजना लगभग 40,000 करोड़ का है और अगले 2020 तक दोनों फेजेस में इसे समाप्त किए जा रहे हैं। महोदय, इस योजना के संदर्भ में मैं सिर्फ माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि हर गांव तक, हर पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर से आपको ये तार पहुंचाना है। फेज 1 का काम लगभग समाप्त हो गया है और जब हम कभी पाइप बिछाते हैं तो पाइप से पानी घर तक पहुंचता है, वो हमारी उपलब्धि है। जब बिजली का खंभा गाड़ते हैं तो बिजली के खंभे से गांव तक बिजली पहुंच जाए, वो हमारे लिए उपलब्धि है। जब गैस पाइपलाइन बिछाते हैं तो गैस पाइपलाइन बिछने के बाद घर तक चूल्हे का कनेक्शन हो जाए, तो वो हमारी उपलब्धि है। मैं इस संदर्भ में जानना चाहूंगा महोदय कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है जो ग्राम पंचायत तक जाना है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा और आपके भी राज्य का उदाहरण देना चाहूंगा। जो गांव में स्कूल होते हैं वो सबसे ज्यादा इसका लाभ उठा सकते हैं और वो एक प्रामाणिकता देता है कि किस प्रकार से इंटरनेट की सुविधा हर गांव तक पहुंची है। महोदय, बिहार में सिर्फ 2.4%, जबकि केरला में 48%, कर्नाटक में 84% स्कूलों में, चंडीगढ़ में 100%। हमारे लिए मानक है कि ये ऑप्टिकल फाइबर 40,000 करोड़ रुपया लगा के बिहार के मात्र 2.4% स्कूल तक इंटरनेट कनेक्शन पहुंचा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि तारें बिछाई गई हैं, लेकिन जो अंतिम उपभोक्ता है और जो बच्चों तक, स्कूल तक अगर पहुंच जाए तो हम समझेंगे कि हर प्राथमिक विद्यालय, हर गांव तक ये ऑप्टिकल फाइबर का एंड यूज पहुंच गया। माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे
कि क्या आपने इस प्रकार से इसकी उपयोगिता का ऑडिट की है कि जो ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाया गया है वो अंतिम गांव तक पहुंच सके, उसकी क्या आपने ऑडिट कराई है और उसकी क्या क्षमता है, इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्योंकि सिर्फ लाइन बिछाना ये हमारा काम नहीं, तो जो हमारा एंड यूजर है वहाँ तक उसका फायदा पहुँचे। जैसा कि उन्होंने कहा, स्कूल होंगे, ग्राम पंचायत होंगे, या वहाँ पे जो एंड यूजर है, तो इसके लिए हमने हमारे जो CSC है उनका एक मॉडल बनाया कि CSC करीब 90,000 जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे हॉटस्पॉट प्रोवाइड करेंगी। 2 हॉटस्पॉट एक ग्राम पंचायत में प्रोवाइड करने का हमारा मानस है, और इसमें जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है वो हम करेंगे। और इस तरह से उन्होंने जो कहा कि सिर्फ पाइपलाइन बिछाना ये हमारा काम नहीं, तो उसका पानी भी घर घर तक जाके पहुंचे, इसके लिए हम पूरा प्रयास। श्री हसनैन मसूदी जी। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड पिछले 4 महीने से बंद है। आप ये सवाल नहीं है, सवाल आप पूछो कि कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे। वही ब्रॉडबैंड की बात, यही पका ब्रॉडबैंड और इंटरनेट 4 महीने से बंद है। आप देखिए कितनी असुविधा है। कोई 15 लाख स्टूडेंट्स को नहीं, उनको एक्सेस है इंटरनेट और ब्रॉडबैंड में, नहीं वहाँ के होटलियर्स और बिजनेस जो मैन है वो कोई बुकिंग कर सकते हैं, बाकी कर सकते हैं। तो आपका विषय नहीं है, फिर भी आप देना चाहें दे दे जवाब। हाँ सर, सुरक्षा के कारण ऐसे कुछ इंतजाम किए गए थे, लेकिन अभी बहुत सी परिस्थिति वहाँ पे सामान्य हुई है। दुष्यंत सिंह जी। आदरणीय स्पीकर साहब, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं अपने मंत्री जी से ये इलेक्ट्रो आस्क हिम, इन्हें बोला है कि 2.5 लाख पंचायत को ये लोग जोड़ेंगे। मैं राजस्थान से आता हूं और मेरा क्षेत्र, मैं राजस्थान से आता हूं। मेरा क्षेत्र एक एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है, और एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के कारण ये जो ब्रॉडबैंड की जो फैसिलिटी गांव-गांव को देनी होती है, अभी पहले प्रश्न में पूछा था कि 40,000 करोड़ का राशि दी गई है। मेरे हिसाब से मुझे जो सूचना मिली है, इसमें 70,000 करोड़ की राशि मिली है, और 70,000 करोड़ की राशि का पूरा पैसा एंड यूजर तक, वो जो यूजर है, जो आम आदमी है, आम किसान है, उसको वो सुविधा नहीं मिली है। मैं मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है, और कई डिस्ट्रिक्ट हैं, 112 डिस्ट्रिक्ट हैं जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट हैं, और पूरा देश है, इस देश में ये जो सुविधा है ये एंड यूजर तक आपका पहुंचा। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो 70,000 करोड़ की जो बात की, तो वो तो नहीं है, उसमें 43,000 करोड़ का यह अभी तक खर्चा जो है वो करीब 17,000 करोड़ उसमें हो चुका है। और राजस्थान में टोटल 9,880 जीपी है, उनमें से 8,713 जीपी सर्विस रेडी हो गए। राजस्थान में बहुत अच्छा काम इसमें हुआ, और अभी हॉटस्पॉट के बारे में मैंने जो बताया तो वो राजस्थान में भी होने वाला है, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है उसके ऊपर हम खास तौर से ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 124। आप माननीय सदस्य नियम प्रक्रिया की तहत लिख दें, मैं मंत्रालय को भेजूंगा, उसके बाद विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 124 श्री डीके सुरेश जी, नलिन कुमार कटेल, दोनों। माननीय मंत्री जी। The answer is laid on the table, sir. श्री ए राजा जी। Happy to hear from the Honorable Minister that all regional languages have been permitted in the competitive examination which is being done by the Railway Ministry. Sir, yet another question arises there. Since the Railway Ministry maintaining the interstate competitive examinations, most of the times
people from northern India are getting jobs in the recruitment in Tamil Nadu, Andhra, Kerala and Karnataka. Not in the officers cadre. Even for clerk and junior assistants, substantial amount of posts are being filled in the Tamil Nadu and Kerala from the North Indian states. In order to maintain the state equilibrium in terms of posts, number of posts, state-wise competitive examination must be held. I want to know from the Honorable Minister whether such a system is going to be adopted in future, at least to maintain the state-wise equilibrium in terms of number of posts available in the Railway Ministry. Sir, the honourable member has asked the valid question today. It is not like that what he has stated, and in the regional languages also the examination has been conducted. For example, Assam 1,51,000 people have appeared in the local language, Bengal 8,44,000, Gujarat 3 lakh. No. Permitted to write in Hindi in Tamil Nadu, and they are getting jobs where the Tamilians are deprived of. माननीय मंत्री महोदय, मैं फिर आपसे आग्रह कर दूं, आप जब कोई माननीय सदस्य बीच में उठे तो उसका जवाब मत दिया करो, ठीक है ना? आप मंत्री महोदय, आप ऐसे खुद सदन मत चलाया करो, ये जिम्मेदारी मुझे आपने दी है, जो पूछे वो क्या। Thank you, sir. Sir, along with English and Hindi, other languages also have been included for the local languages. The concerned people, including in Kannada, the D.K. Suresh and Naren Kumar Katil, they have asked the question from Karnataka. Even I can talk to them in Kannada also. There are now Kannadadalli irodu Vanakkam. Even I can tell to Mr. Raja, Vanakkam. In this parliament yesterday, the Vice President in Constituent Day, he has made it very clear. Everybody must learn the mother tongue. Okay, right. निकाल देना कार्रवाई, ठीक है, okay. All the languages, along with the English, Hindi, all the other languages, more than 13 languages have been included, including Kannada, Tamil, Telugu, everything. Question number 125, CRVS Ramesh. Sir, good morning. CRVS Ramesh. Yeah, good morning, Honorable Speaker, sir. Question number 125. Laid on the table, sir. माननीय सदस्य. Yeah, supplementary question to 125. Whether the minister will convert guidelines governing shortlisting and posting of divisional railway managers referred to in the reply in rules in view of its relating to appointment of DRM, sir. Thank you, sir. Sir, the DRMs have been appointed based on the guidelines in the 2016. The guidelines will be totally open to the DOPT, the Chairman Railway Board, with the consent of the Railway Ministry. That will be done, sir. Totally transparent, sir. Along with that, the efficiency of the person, because it belongs to the railways, the person who is having the knowledge in railways, and he should have his own track record of the CR, confidential report. Based on that, it is appointed. The power is vested with the Railway Ministry, which is subject to the Railway Board and DOPT, sir. Shri K. Muralidharan ji. Most of the DRMs, they don't know the local language. In Kerala also we are facing it. So will you please give direction to DRMs to study the local language? It is prerogative of every person to learn the languages of the local language along with the Hindi and English. Railway belongs to the rail. Please understand, railway is not belongs to the state-wise. Railway is on zone-wise. So any person who is appointing as a DRM, he will be considered the local language and other these things also. Then only the interview has been taken by the Railway Chairman, Board and DOPT. Based on their efficiency, how he will discharge the work of the railways, on that it has been made with the approval of the Railway Ministry. Question number 126, Manoj Tiwari. Mantri ji. Reply is laid on the table of the House. Question number 127, Shri Girdhari Yadav ji. माननीय मंत्री जी. उत्तर सभा पोर्टल पर रख दिया गया था. माननीय सदस्य. माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय मंत्री ने अपने जवाब में कहा है कि 1968 में एक कमेटी का गठन हुआ जिसने 2012 में रिपोर्ट दिया है हिंदी के माध्यम से एग्जाम के मामले में। जब इतने वर्ष लग गए, हमको लगता है 44 साल लग गया एक कमेटी को कि इंग्लिश से हिंदी कैसे होगा, क्या हो सकता। आप जानते हैं इस विश्व में चीन और जापान ने जो तरक्की किया है अपना स्थानीय भाषा में तरक्की किया, लेकिन हमारे देश में जब तक स्थानीय भाषा में नहीं होगा, क्वेश्चंस होंगे, पढ़ाई नहीं होगी, तब तक हमारे देश में आप जो पिछले आप तो सवाल पूछो। सवाल यही है माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार जिन प्रतियोगी परीक्षा की भाषा में हिंदी माध्यम नहीं है उसमें हिंदी माध्यम बनाना चाहती है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसमें बहुत औचित्य है और उस प्रश्न में उन्होंने स्वयं उत्तर भी दे दिया और उत्तर के साथ एक और प्रश्न भी जोड़ दिया कि जब ये 1968 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट पास हुआ था तो पिछले 50 वर्ष क्या होता रहा। तो जैसा कि माननीय सदस्य इस बात से तो सहमत होंगे कि ये सरकार तो अभी 2014 में ही आई है, पीछे क्या होता रहा, क्यों नहीं हुआ, इसका उत्तर भी किसी को देना होगा, वो एक अलग बात है। परंतु पिछले 5 वर्ष में सबकी सब वर्नैकुलर्स, स्थानीय भाषाएं और हिंदी को बढ़ावा देने का भरपूर प्रयास किया गया है। आप इस बात से सहमत होंगे और इसके प्रमाण भी मौजूद हैं कि प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुसार सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग अब बहुत अधिक मात्रा में पिछले 5 वर्षों में बढ़ा है। अब जहां तक मूल प्रश्न का संबंध है इनका कि क्यों नहीं इसको दूसरी भाषाओं में इस प्रकार की सुविधा दी जा रही या विकल्प, उसका उत्तर भी आप ही के प्रश्न में है जो आपने पिछले भाग में कहा कि 1968 से लेकर के अभी तक उस प्रकार की सामग्री तैयार नहीं हुई। बहुत से छात्र होंगे ऐसे जो हिंदी में ये परीक्षा लेना चाहते हैं या दूसरी भाषाओं में लेना चाहते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन और विशेषकर टेक्निकल एजुकेशन, भले ही वो MBBS का हो, भले ही वो इंजीनियरिंग सर्विस का हो, उस प्रकार की पुस्तकें, टेक्स्ट बुक उपलब्ध नहीं है उस स्टैंडर्ड की ट्रांसलेशन में, तो कहीं ना कहीं छात्र को डिसएडवांटेज हो सकता है। तो निश्चय हम में से कोई ये भी नहीं चाहेगा कि किसी छात्र को उस भाषा में उस तरह की स्तर की सामग्री नहीं मिलने से या साहित्य नहीं मिलने से किसी प्रकार का नुकसान रहे या डिसएडवांटेज रहे, लेकिन उसका शायद यही एक उसका समाधान भी यही है कि उच्च स्तर की शिक्षा के लिए उस प्रकार की पुस्तकों का निर्माण किया जाए, लेखन किया जाए और साथ ही साथ अनुवादक भी उपलब्ध रहें इनको ट्रांसलेशन करने के लिए। और इसलिए उस हद तक मैं आपकी बात से शायद सहमत हूंगा कि बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो चाहते हुए भी कि हिंदी या अन्य स्थानीय भाषाओं में वो परीक्षा लें, उन्हें कई बार अंग्रेजी में परीक्षा लेनी पड़ती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, कि 44 साल लग गए। सब सरकार से बात कर रहे हैं, जो अंग्रेजी लॉबी है, चाहे वो किसी सरकार हो, इस देश में जो भी सरकार है, जो अंग्रेजी लॉबी के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि हिंदी भाषा में परीक्षा हो। सरकार कोई भी सरकार बदलेगी इस देश में, तो कोई भी सरकार होगी, जो पिछड़े दलित और जो अकलियत के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो हिंदी ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, श्रीमती रमा भाषा में ज्यादा करना चाहते हैं। लेकिन जो अंग्रेजी की लॉबी के लोग इस देश में बैठे हुए हैं वो हिंदी माध्यम से परीक्षा नहीं लेना चाहते हैं। माननीय श्रीमती रमा देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत प्रश्न के जवाब तो मिल ही गया है, लेकिन फिर भी पूछना चाहती हूँ, ये तो संतुष्ट कर दिए हैं। हमारे देश में संविधान के अनुच्छेद 351 में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सरकार का कर्तव्य है कि हिंदी के विकास एवं प्रचार का कार्य इस प्रकार से करें कि भारत में नौकरी एवं भर्ती अवसरों पर कोई भेदभाव न हो, परंतु प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का माध्यम न बनाकर हिंदी भाषा क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जाता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय कि आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार संविधान एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के मद्देनजर भारत में कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल अंग्रेजी माध्यम को समाप्त करने की कोई घोषणा करेगी? अगर नहीं तो इसका क्या कारण है, यह बताने का कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आदरणीय सदस्य ने स्वयं कहा कि इस प्रश्न का उत्तर किसी हद तक चर्चा में पहले प्रश्न में भी आया
और जैसे आपने स्वयं कहा कि ये निर्णय लगभग आधी शताब्दी पूर्व हुआ था, लेकिन पिछले 5 वर्ष में उसी दिशा में कार्य हो रहा है जिस दिशा में आपने अपनी इच्छा प्रकट की है। निश्चय ही सभी भाषाओं में, विशेषकर जो 8 शेड्यूल में सम्मिलित हैं, उनमें इस प्रकार की सुविधा और विकल्प रहना चाहिए। परंतु साथ ही साथ जैसा कि यूपीएससी के माध्यम से इस प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, और उन्होंने जब उच्च स्तरीय एक समिति बनाई थी, उन्होंने एक सुझाव दिया और बड़ा उचित सुझाव था कि साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उस स्तर की सामग्री भी उस भाषा में उपलब्ध रहे और अनुवादक भी उसी स्तर के रहे, ताकि किसी छात्र को इस कारण नुकसान ना हो। तो दोनों ही चीजें साथ साथ होंगी। नहीं हो पाया पिछले 45 वर्ष जब से ये होना चाहिए था, उसका उत्तर शायद कहीं और से हमें हासिल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 128 श्रीमती संध्या राय। श्रीमती संध्या राय। प्रश्न संख्या 128। माननीय सदस्यगण। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेल विकास निगम लिमिटेड की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा 19 दिसंबर 2002 को दी गई थी तथा यह उपक्रम 24 जनवरी 2003 को कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन कंपनी के रूप में पंजीकृत हो गई थी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश के भिंड एवं दतिया जिले में रेल विकास लिमिटेड के द्वारा विगत 3 वर्षों के दौरान किन किन परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया और उनके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है। साथ ही मध्य प्रदेश में रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा रेल परिचालन, रेल लाइन, रेल ब्रिज इत्यादि परियोजनाओं का निष्पादन करने में क्या प्रदर्शन रहा। साथ ही मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भिंड, सोनी एवं गोहद रेल ओवरब्रिज की नितांत आवश्यकता है। साथ ही भिंड रेल लाइन का दोहरीकरण के साथ साथ ग्वालियर, भिंड, इटावा रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जाना आवश्यक है। सरकार इन कार्यों को कैसे देखती है? संबंधित कार्यों का निर्माण कार्य प्रारंभ तो कब तक होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? Sir, the question is very elaborate, and the honorable member has said this is one of the excellent companies, sir. 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी का सोच था, जैसा नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कंपनी बनाया था, ऐसा RVNL बना के टुडे इट इज दी वन ऑफ द मिनी नवरत्न हो गया है। अभी मध्य प्रदेश उसका जो ऑनरेबल मेंबर का जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में पूरा लिखित हम आंसर भेज देंगे सर। श्री रेवती त्रिपुरा। शुक्रिया सर। आपने 1 में 4 पूछ लिए। मेरा प्रश्न ये है कि क्या रेल विकास निगम लिमिटेड या रेल मिनिस्ट्री धर्मनगर या अगरतला में रिक्रूटमेंट सेंटर खोलने के लिए कोई सोच रहा है क्या? टू दी प्रेजेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129 नव कुमार सरनिया। नहीं है। Laid on the table of yours. क्वेश्चन नंबर 130 श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत। प्रश्न क्रमांक 130। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। छत्तीसगढ़ में रेलवे क्षेत्र के विकास को लेकर सभी परियोजनाओं का रेल बजट में मंजूरी तो मिल गई है, परंतु काम या तो शुरू नहीं हुआ है या जो काम शुरू हो गया है बहुत धीमी गति से हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो भी शासकीय प्रशासकीय व्यवधान योजना क्रियान्वयन में आ रहे हों, उनको क्षेत्रीय सांसदों के साथ संबंधित रेलवे अधिकारी मिलकर उसका निराकरण करें ताकि जनमानस को तत्काल व्यवस्थाएं और लाभ मिल सके। धन्यवाद। Sir, for any progress of the railways in the concerned states, the state government also should cooperate, and the availability of the land is the subject of the state, sir. The land made available to the railways, the work can be started, sir. And if any problem with the honorable member, I'll talk to the concerned authorities to talk to the members, honorable members. माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं? नहीं। श्री M.K. राघवन। Yes, sir, for giving me this opportunity. Sir, Kozhikode railway station has been upgraded as a world-class station years back.
the Government of India has announced the redevelopment project for Kozhikode railway station. Now the proposal of the project has been transferred to RLDA Delhi from Railway Headquarters, Chennai by as a special officer. Sir, my question is, I would like to know from the Honorable Minister through you, Speaker, sir, what is the status of the mentioned project now and when the project will take off? Sir, almost all the railway stations we are going to have the world-class stations we are making. The Honorable Member has asked the specific question. I will send him in the details, sir, after obtaining the details. Question number 131, Dr. Shashi Tharoor ji. 131, sir. Manya Sadasya ji. Thank you very much, Mr. Speaker. I've looked at the reply of the Minister. He essentially links the decision to merge the two bodies, the NSSO and the CSO, into a single entity on a decision of the Union Cabinet in 2005 and a resolution dated the same year. However, sir, that intended to create an independent body that would be accountable to Parliament, whereas what this government has created is a non-autonomous body that is accountable directly to the government and the ministry. Would the Minister kindly clarify in what regard this is consistent with the decision of 2005, and secondly, why should this body not be accountable to Parliament, sir? Commissions are independent bodies, constitutional authorities. No commission, as far as I know, is accountable to Parliament in that sense. It's a body by itself, a constitutional entity. So the fact is that we are facing a crisis in terms of statistical credibility worldwide. The constant revision of numbers by the government. We've seen, for example, its own chief economic advisor questioning the revision of GDP growth from 6.7% to 8.2%. We have seen an extremely great embarrassment when the revised GDP calculations based themselves on a data bank of corporations, of which 36% of the corporations were non-existent or wrongly classified. We have seen the National Consumer Survey, sir, being discredited and withdrawn, even though numbers are being leaked all over the country. And those of us who are Lok Sabha MPs, we know from our constituents the financial difficulties they're going through, sir. In these circumstances, would the government agree to having a review by a committee of independent experts, domestic and international, to look into the processes being followed and the sources being used in gathering data in our country? There was an op-ed in today's Indian Express by pro-government voice saying the processes are wrong. The credibility of our country in international forums is at stake, sir. Our economic success depends on credible numbers. I would urge the government to take this challenge seriously. The headlines of the day are less important, matter much less than the credibility of the nation on the world stage. Thank you. Thank you, Mr. Sir, the government is aware of the shortcomings in the data collection center. It's a continuous process. We're trying to upgrade it. We are aware of it, and we'd be happy to have any inputs that the honourable member might want to give on this. But this is a decision that the government will have to take on its own after taking in inputs from all that are concerned, whether they are international or they are domestic. And as far as the commission is concerned, sir, I said the commission is a constitutional body, not the NSO. 132, Sri Tejasvi Surya. Question number 132, sir. चल पर रखा गया. माननीय सदस्य. Sir, as we are all aware, the electronics import made by India is a big press on our foreign exchange. After petroleum products, the maximum press on our foreign exchange is electronic exports. The Prime Minister has constantly made efforts to ensure that India transforms itself into a global manufacturing hub for electronics and system design and manufacturing. However, sir, in the statement that is laid, it is said that the modified special incentive package scheme is closed. Also, the receipt of applications under the electronic manufacturing clusters is also closed. And also, the disbursement of granting aid will only continue till 2022 October. Would the Minister kindly be pleased to answer why these important flagship schemes have not been continued and given the thrust that it needs to, and also
coming from Bangalore, which contributes to 80% of the total electronics system design and manufacturing ecosystem in the country and the revenue, I request him, if there is any proposal to be made with respect to ensuring that Bangalore develops as a global hub for electronics manufacturing in the country. अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो पूछा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में पूरे विश्व के साथ कॉम्पीट करने के लिए हमने कई सारी स्कीम दी और उसका बेनिफिट भी मिला, बहुत ज़्यादा प्रगति इस क्षेत्र में हुई। अब ये स्कीम जो है, हर स्कीम का एक पीरियड रहता है और अभी हमारी जो नई इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी आ रही, उसके अंदर हम कुछ और स्कीम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम वो पहले भी थी, इसका नाम अभी EMC 2 है। तो इस ऐसी स्कीम हम लाने जा रहे हैं और निश्चित ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में इसमें लाभ मिलेगा। So the ongoing trade war between US and China is a great opportunity for India to explore and exploit. However, many of the electronic design and manufacturing units are going out of China and are taking shelter in Vietnam, Thailand and such other countries. Is the government on war footing trying to make any efforts to attract and incentivize these companies so that they can come to India without much delay? अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ के जो यूनिट है वो बाहर न जाए, इसके लिए तो हम प्रयास कर ही रहे हैं और बाहर के जो है वो भी हमारे यहाँ आए, इसके लिए भी हम कुछ स्कीम बना रहे हैं। श्री दयानिधि मारन जी। Allow me to ask a question. Sir, I should congratulate the Ministry of IT for making sure Apple has come to manufacture in India, especially in Chennai. But we should go back and see, this is happening because of the policies of the UPA. Between 2004 and 2009, when Nokia started manufacturing, and the same factory has now been taken over to manufacture for Apple phones. And moreover, sir, it is also because of the legacy of the UPA government and then IT minister, because of all the Foxconn, Flextronics, and all the IT setup was set there. I'm sure, sir, while taking credit, the Ministry of IT should give the credit to the then UPA government for bringing such good policies then to make a base for all the maximum IT industry to come to India. In fact, Samsung is there, is still operating here. And sir, in fact, we appreciate for you to support the efforts taken by the then UPA government and continue rather blocking it. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की उसका मैं स्वागत करता हूं और ये ऐसा क्षेत्र है कि इसमें हमको सबको मिलके साथ में काम करना होगा, तो आप सभी लोगों का सहयोग मैं इसमें अपेक्षित करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो कुछ हो रहा, एक तो आप मानेंगे कि हम भी अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। श्री धर्मवीर सिंह जी। पर्सन संख्या 133 टेबल सर। माननीय सदस्य। क्योंकि सर, इसमें दो राय नहीं कि पिछले सालों में रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया है और आपके प्रश्न से हम संतुष्ट भी हैं, पर मेरी एक साथ में जो मैंने प्रश्न किया था, ये सब काम होते हुए भी एक हरियाणा एक्सप्रेस दिल्ली, रेवाड़ी, हिसार, बठिंडा चलती थी, वो कब चालू होगी दोबारा? और नंबर 2, भिवानी से रेलवे लाइन का काम कब चालू होगा? Sir, honorable member has stated railway is doing the good work. I thank you for his appreciation. And whatever the railway he wanted to start his place, that I'll जानकारी लेके आपको दे दूंगा. और जो भी काम प्रोग्रेस करने के लिए the land availability and other facilities from the state government is required, sir. वो होने के बाद वो भी करके देंगे. क्वेश्चन नंबर 134 श्री ए नारायण स्वामी। श्री ए नारायण स्वामी क्वेश्चन लेकर दें। Statement is laid on the tables. क्वेश्चन नंबर 135 श्री गोपाल शेट्टी जी। अरे 135 आ गया सर, पता नहीं था 135 आ जाएगा। सॉरी सर। अध्यक्ष जी, एक तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने 135 तक के क्वेश्चन को लेकर गए
मैं जो उत्तर दिया है उससे संतुष्ट हूं, इसलिए अगला सवाल मेरा नहीं बनता है। थैंक यू सर। 133 श्री पंकज चौधरी जी। पूछने वाला नहीं है पंकज चौधरी। चलिए अगला। आगे बोल दिया, नेक्स्ट बोल दिया अगली बात। धन्यवाद अध्यक्ष जी। 136 तक लाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है कि आरओबी कोई भी महाराजगंज में निर्माणाधीन लंबित नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आनंद नगर रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ जो कि फाटक है और मानीराम और नकहा में जो NH का गेट है, वहां पर भविष्य में कोई प्रस्ताव है क्या ओवरब्रिज का? सर सभी जगह पे अनमैन ये लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो भी समस्या है वो रेलवे अधिकारी से जानकारी लेके उनको डिटेल दे देंगे। 137 श्रीमती साजदा अहमद। Question number 137. Sir, my question was. लेकर दे माननीय मंत्री जी। आप माननीय जितेंद्र सिंह जी। Statement is laid on the table of the House. It's question number 137, whether the government has set up Defence Space Research Agency. But the answer the minister gave me was just a simple no. So I would like to ask through you the reason for this. I think partly also, Honorable Speaker, because the Defence Space Research Center is a subject which is not normally discussed in public domain, and it is also in cognizance with the Ministry of Defence. But having said that, you would appreciate that a considerable headway has been made, the most notable feature being that in May this year itself, we had a research satellite launched, which is called the radar imaging satellite, which is related to the security. Question number 138, Shri Kirit Premji Vai Solanki. Sir, जो युद्ध आजकल पहले जमीन पे लड़ा जाता था, दरिया पे लड़ा जाता था। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर बोलो। 138। लंबा मत करना, बहुत लंबा पहले से बोल रहे हो। 1 मिनट पूछे, 1 मिनट 20 ला रहे हैं। चलो, एक विवरण सभापति में रखा हुआ है। सभापति में सर, पहले युद्ध जमीन पे लड़ा जाता था, जो हवाई में लड़ा जाता था, जो स्पेस में लड़ा जाता था, आज साइबर वॉरफेयर के जरिए लड़ा जाता है। मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे जो आर्मी में, हमारे जो रक्षा मंत्रालय में वॉरफेयर के जरिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो हैक ना हो, ऐसे वॉरफेयर के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए कुछ किया जाएगा। सर, जो कुछ माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और हमारी तीनों सेना इस साइबर अटैक को वापस रिस्पॉन्ड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 139, श्री विनोद कुमार सोनगर। क्वेश्चन नंबर 140, खान मंत्री जी। लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस सर। माननीय सदस्य माननीय प्रेम जी, N.K. Premchandran ji. Sir, I would like to ask to the Honorable Minister regarding the MMDR Act 1957. Yes, absolutely, you are correct that the sanction, the approval has to be given by the state government for mining lease. I would like to know from the Honorable Minister regarding the mining lease, providing mining lease, whether in the mineral area, atomic mineral area, whether it will be a mandatory provision that the state government should provide the mining lease so as to mine the bits and minerals of our country. That is the specific question which I would like to know. Question related to this atomic energy, related to that department. However, I will have a look into it. मैं सभा को बधाई देना चाहता हूं कि आज सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से आज हम सभी माननीय
मंत्रीगणों के सहयोग से हम आज 20 प्रश्नकाल पूरा कर पाए। मैं कोशिश करूंगा कि माननीय सदस्य भी अपना प्रश्न पूरा पूछ सकें, और माननीय मंत्री जी से भी मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्यों का संक्षिप्त में सही उत्तर उनको मिल जाए, ताकि सदन के अंदर जिस तरीके से आपके सहयोग से आज हमने प्रश्नकाल पूरा किया है, इसके लिए आप सब